Yes, dear students, in last session we discussed some questions, assertion and reasoning based questions on reflection of light. And before that we discussed again assertion and reasoning based questions on, yes, colorful word and human eye. So today we are going to discuss some assertion reasoning based questions on reflection of light. And these questions are very, very interesting, and these questions will help you to get knowledge as well as marks. Okay, here I have taken 20 questions. So we shall be discussing 20 questions in this session. And you have to see the relation between assertion and reasoning. Assertion and reasoning, that how reasoning means reason is supporting the assertion here. So we have to see the relationship. In some cases, you will find assertion is true, but reason is false. In some cases, you will find assertion is false, but reason is true. Okay, the two statements are there. And in some cases, you will find that assertion statement is being supported by the reason statement. Okay. And in some questions, you will find that assertion and reason both are true. Dono statement true hai, but reason is not the support of or is supporting the assertion. Okay. So now let's start the session. Here direction you know, है ना? ये आपको पता ही है कि option A is there if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. And second option B होगा, both A and R are true, assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of A. Okay, and the third option is part C, A is true, assertion is true, but reason is false. And fourth one is assertion is false, but reason is true. Okay, now let's start the session here. So the first question is, higher the refractive index of the medium, lesser the velocity of light in that medium. Okay, ये हमारा assertion है कि higher the refractive index and lesser is the velocity of light. You can see relationship क्या होगा इसमें. So here relationship is inversely proportional. So, mu means refractive index is inversely proportional to velocity of light in that medium. Okay, तो ये इसका relationship हमारा, ये तो हमारा true है. This we know. Okay, if refractive index is higher, so in that medium speed of light is less. ये statement हमारा true है. Okay, this is true. And reason देखो इसका क्या दे रखा है. Reason क्या दे रखा है, refractive index of medium is inversely proportional to the velocity of light in that medium. ये भी true है ना, ये हमने देखा. Okay, तो ये जो statement है, assertion का statement है, it is being supported by the reason. क्यों इसमें speed of light ज्यादा कम होती है अगर refractive index ज्यादा है? क्योंकि relationship ये कहता है कि refractive index higher होगा तो velocity of light in that medium will be less. Okay, velocity of light in that medium will be less. So therefore A and R दोनों ही सही है ना. ये तो स्टेटमेंट ठीक है, हम लोग जानते ही हैं इसमें. और रीजन जो है असर्शन को सपोर्ट कर रहा है. रीजन इज सपोर्टिंग द असर्शन. तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा? पार्ट A is the solution. A and R are both true and R is supporting A. Right? Any problem here? Got it? Now next question. Okay, so here higher refractive index means denser medium. Again I am explaining, अगर refractive index higher होगा that means medium is denser. और denser medium में speed of light क्या होती है? Less होती है, because particles are very close to each other. ठीक है. So now second question. Assertion क्या है देखिए, two lenses of power minus 2.5 and here minus sign is there, it is important, and here plus 1.5. तो minus किसका होता है? Minus is for which lens? Yes, concave lens. And plus किसके लिए होगा? This is for, yes, convex lens. Good, convex lens are placed in contact. Then focal length of the combination is minus 1 meter. ये minus 1 meter होती है. ठीक, तो इसको देखें -1 मीटर है. इट्स वेरी गुड क्वेश्चन है ना. न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल हो गया एंड देन प्रैक्टिस फॉर द असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आल्सो. सो हियर वी फाइंड द पावर फर्स्ट. P is equal to -2.5 and here plus 1.5 diopter
What do we get here? We get -1 diopter. एंड -1 डायोप्टर है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो फोकल लेंथ क्या होगा? F इक्वल टू वी नो है ना 100 अपॉन 1 अपॉन D इन मीटर। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, दिस इज 1 एंड हियर पावर क्या हो गया इसका? हियर इट इज पावर है ना, दिस इज P पावर इन मीटर। ये हमारा डायोप्टर में है, डायोप्टर में लिखेंगे तो दिस इज 1 मीटर आ रहा है। ओके, पावर इज -1 D, तो 1 D लिखेंगे तो ये फोकल लेंथ किस में आएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे 1 D एंड ये नहीं यहाँ पर, देन F comes out to be -1 मीटर है ना। तो 1 अपॉन -1 1 अपॉन -1 इक्वल टू -1 मीटर। तो ये हमारा ट्रू है, this is true. Okay, any problem here? Because focal length is inversely proportional to power. Now power of combination हमने देखो ये यूज किया, इसमें जो रीजन दे रखा है हमने, this reason is used here. Okay, हमारा ये रीजन यूज हुआ कि पावर इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हमने यूज किया P1 प्लस P2। फोकल लेंथ इज 1 अपॉन P, ये हमने यहाँ यूज किया है ना। तो दिस मीन्स दिस रीजन इज सपोर्टिंग द असर्शन। जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला है, पावर दिया था हमने, फोकल लेंथ निकाला है -1, तो दिस हैज बीन ओके कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ P1 प्लस P2 एंड देन फोकल लेंथ वी हैव कैलकुलेटेड यूजिंग 1 अपॉन P। ओके, तो देयरफॉर रीजन इज सपोर्टिंग द असर्शन। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन होगा हमारा? यस, पार्ट ए इज द करेक्ट, पार्ट ए इज द करेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे हम PART पार्ट एंड हमारा करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए। A and R both are true and R is supporting A. Reason is supporting A. Okay, any problem here? Now question number 3. The refractive index of medium is a pure number. Is a pure number. प्योर नंबर होता है क्योंकि देखिए 1.5 भी हो सकता है, 1.33 भी है। ओके, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर देयर, इट्स ए प्योर नंबर। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है या नहीं है? जस्ट थिंक ऑफ इट, सोचिए, ट्राई टू रिकॉल। So refractive index of water is 1.33 and it's a pure number है ना। अभी हम बात कर रहे थे कि refractive index of medium is a pure number, but why it is a pure number? The question comes to us कि 1.5 आया कैसे है ना, 1.33 आया कैसे? No, so refractive index हम what is the formula of refractive index? तो refractive index का formula क्या होता है? It is the ratio of the speed of light in air to the speed of light in another मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो इट इज अ रेशियो। तो रेशियो की वजह से क्या होता है? यूनिट्स आर कैंसिल्ड एंड वी गेट अ प्योर नंबर। बट हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 1.33 विच इज नॉट सपोर्टिंग द स्टेटमेंट कि हाँ ये जो प्योर नंबर आता है बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला आता है ना, ये हमारे को नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पर ए एंड आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 होता है, तो ए एंड आर आर बोथ ट्रू। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि व्हाई इट इज अ प्योर नंबर। ये प्योर नंबर तो है, लेकिन ये आया कैसे? दिस इज नॉट बीइंग एक्सप्लेन, इज बीइंग नॉट बीइंग स्पॉटेड बाय द रीजन। तो देयरफॉर यहां पर क्या होगा? सो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा, दिस इज ऑप्शन बी। Option B is the answer here. Okay. Now, next, the frequency of light remains same when it travels from one medium to another. ठीक, ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, सोचिए, यस इट इज करेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट, फार्मूला क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट का? इट इज v इक्वल टू f इंटू लैम्डा है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। और जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, ओनली वेवलेंथ इज चेंज, दिस वी नो। तो रीजन क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये भी ट्रू है। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, तो स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज, स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज।
ये दोनों ही ट्रू है, स्टेटमेंट असर्शन का और स्टेटमेंट रीजन का ट्रू है ना, लेकिन डज इट इट मींस रीजन सपोर्ट द असर्शन? दिस यू हैव टू सी कि वेदर इट इज सपोर्टिंग और नॉट। यस यस, सोचा? तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज है, दोनों ट्रू है हमारा, लेकिन क्या ये सपोर्ट कर रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होने का रीजन क्या है? ओके इसमें बिल्कुल जो रीजन है, इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग दैट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो ये जो हमारा रीजन है, ये कहीं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, ओनली वेवलेंथ इज चेंज, ओनली स्पीड इज चेंज, ये बता रहा है ना। तो स्पीड चेंज होता ही होता है, तो देयरफॉर क्या होगा इसमें, ऑप्शन क्या होगा, विच ऑप्शन शुड बी देयर, ए और बी? यस, हियर क्या होगा, बी। तो पार्ट बी, हमारा बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ए एंड आर आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द यस करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो देयरफॉर ऑप्शन हमारा आएगा बी। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of light in glass depends on the color of the light. Color of the light means color of incident light. The speed of light in glass depends on the glass means here glass slab depends on the color of the incident light. Okay, ये ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है ना? Yes. Okay. Now reason क्या दे रखा है? The refractive index of glass is different for different colors of लाइट, दिस इज ऑल्सो ट्रू है ना, कलर्स ऑफ लाइट। तो दिस मीन्स देखिए ये जो स्टेटमेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ये इसमें देखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ओके, सो दिस मीन्स हमारा जो रीजन है इट इज सपोर्टिंग ए, रीजन इज सपोर्टिंग ए। ओके, इसमें देखिए ये चीज आ गई है, कलर ऑफ द इंसिडेंट लाइट और कलर ऑफ इंसिडेंट यहां भी आ गया है ना, कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो ये हमारा इसको सपोर्ट कर रहा है, तो दिस मीन्स हमारा ऑप्शन जो होगा पार्ट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ next. Now next question, question number 6. Refractive index has no unit. Yes, it has no unit because refractive index, it is the ratio of the speed of light in vacuum or to the and speed okay to the speed of light in a medium. तो यहाँ जब स्पीड की बात करेंगे तो यूनिट दोनों की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ भी मीटर पर सेकेंड है, ये कैंसिल हो जाता है, तो देयरफॉर इट हैज नो यूनिट, इट इज ट्रू। अब बात आती है कि क्या रीजन क्या देखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ द टू सिमिलर क्वांटिटीज। यस, ये भी ट्रू है। इसने देखो ये जो रीजन है, इट इज सपोर्टिंग द यस असर्शन। हियर वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। टू सिमिलर क्वांटिटीज मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो दोनों में हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो रीजन है, इट इज सपोर्टिंग असर्शन। तो दिस मींस हमारा ऑप्शन क्या आएगा इसमें, part A. Here also A is the option, that A and R both are true and R is the correct explanation of A. क्यों इसकी यूनिट नहीं होती है, ये इसमें आ रहा है ना। तो इट इज एक्सप्लेनिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो, ये एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट के स्टेटमेंट को, ओके, नो यूनिट को। तो देयरफॉर पार्ट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, Now, next question is also interesting and it is from NCERT. NCERT पढ़ते रहेंगे और आपके मार्क्स आते रहेंगे और नॉलेज भी आती रहेगी। Assertion क्या देखिए, lateral displacement is the distance between incident ray and emergent ray. Okay, between the original path of incident ray and the emergent ray, है ना, होता है ये। अगर हम ग्लास स्लैब की बात करें तो ग्लास स्लैब पे देखिए यहाँ पर अगर ये हमारा इंसिडेंट रे है, इट गोज स्ट्रेट, है ना, ये इसको स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू ग्लास, ये बेंड होके फिर ऐसे आती है ना। तो दिस इज इमर्जेंट रे एंड दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा ट्रू है, दिस इज ट्रू कि इट इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रादर इट शुड बी
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये ट्रू है। अब रीजन क्या दे रखा है, वाइडर द ग्लास स्लैब द लार्जेस्ट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इज इट सपोर्टिंग द असर्शन? रीजन क्या सपोर्ट कर रहा है असर्शन को? दिस यू हैव टू सी, जस्ट थिंक ऑफ इट। तो क्या रिलेशन है इसका, क्या ये इसको सपोर्ट कर रहा है? ओके, जस्ट थिंक ऑफ इट, recall what we have discussed earlier and then give answer. So wider the glass slab, larger the displacement. This we have done. Okay, जो हम जब factors किए थे कि what are the factors on which lateral displacement depend, तो उसमें हमने किया था ये, है ना, कि lateral displacement depends on the angle of incidence, then yes, refractive index of the material of the medium and the thickness of the glass slab. तो इसमें ये भी ट्रू है, तो दिस इज रीजन इज आल्सो ट्रू। तो रीजन हमारा इसमें भी ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? दिस इज आल्सो ट्रू। तो ऑप्शन हमारा आएगा पार्ट विच वन? ए, मींस assertion and reason both are true and reason is correct explanation of okay assertion, right? Any problem here? So now 8, if optical density of a substance is more than the water, then the mass density of substance can be less than water. Okay. Now, reason क्या दे रखा है? Optical density and mass density are not related, है ना? देखिए दोबारा से assertion, if optical density of a substance is more than the water, then mass density of a substance can be less than the water. Optical density of substance is more than that of water, then mass density of a substance can be less than water. Yes, it is true. ये हमने देखा था जब हमने एक सेशन लिया था, उसमें आपको रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे थे। तो देन आई शोड यू वन एक्टिविटी वेयर आई यूज टर्पेंटाइन ऑयल। ओके, टर्पेंटाइन ऑयल को यूज किया था हमने, है ना? तो टर्पेंटाइन ऑयल में क्या था? टर्पेंटाइन ऑयल जो है इट्स फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, इट फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये शो करता है कि मास डेंसिटी टर्पेंटाइन ऑयल की लेस है। बट जो एक्टिविटी हमने शो की थी उसमें आपने देखा था कि इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, दिस मींस ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर, रिफ्रैक्शन इसमें ज्यादा हो रहा था, बेंडिंग ऑफ लाइट वाज मोर इन यस टर्पेंटाइन ऑयल इन दैट एक्टिविटी। ओके, तो दिस इज ट्रू। ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी आर नॉट रिलेटेड। यस, तो मास डेंसिटी क्या होता है? मास डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी क्या होता है? मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो ये होता है हमारा यस क्या? डेंसिटी। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ऑप्टिकल डेंसिटी इज अ टोटली डिफरेंट टर्म, so therefore these are not related to each other. This is also true. Okay, so this means reason is supporting the assertion. ये जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा तो मास डेंसिटी भी ज्यादा होगा, because these are not related to each other. So here option is okay, which part? A part. A part. So means both are true and R is explaining the supporting the assertion. It is a correct explanation of assertion. Okay, now question number 9. If rays of light are diverging after emerging from a lens, the lens must be a concave. Okay, तो देखिए इसमें ये आ रही है रेज और इसके बाद में ये ऐसे जा रही है ना, यस, डाइवर्जिंग आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम ए लेंस, लेंस से बाहर आने के बाद डाइवर्ज हो रही है। इट इज ए कॉन्केव लेंस। ट्रू है ये आपने देख लिया बनाकर। कन्वेक्स लेंस गिव्स आउट डाइवर्जिंग रेज, ये तो नहीं देता है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द रेज एट ए पॉइंट। तो दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, है ना? ये ट्रू हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? तो हियर ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन पार्ट हमारा आएगा सी। तो देखिए इसमें जो हमें क्वेश्चंस है, दीज आर नॉट डिफिकल्ट, दीज आर वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मगअप नहीं करना है, रटना नहीं है किसी चीज को, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज डिफरेंट फॉर रेड लाइट एंड वायलेट लाइट।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज डिफरेंट फॉर रेड लाइट एंड वायलेट लाइट। ये हम लोगों को मालूम है एंड दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। और ये हमने किया भी था, देखो, क्योंकि वेवलेंथ रेड कलर की लाइट का अलग होगा, वायलेट का लाइट का अलग होगा, है ना। एंड वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स ऑन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इन, ओके, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये तो ट्रू हो गया हमारा। अब रीजन क्या बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। दिस इज आल्सो ट्रू, है ना, इसके ऊपर डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। या वेवलेंथ डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। किसके ऊपर, कौन डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडेंट ऑन wavelength, the wavelength is dependent on refractive index. This we have to see. Just think of it. Just think of it what we have done earlier. Okay, so the refractive index of pair of media depends on the wavelength. ये हमारा फार्मूला है, तो explain कर रहा है। तो this is explaining this. Okay, and refractive index of glass, and when a ray of light is passing through a prism, okay, ray of light, white light, then you have seen that here least bending is of which color? Red color, and the maximum bending किसका होता है? This is for violet color. Okay, so this is again related to the refractive index. So therefore, refractive index of glass with respect to air is different for red light and violet light. तो दोनों के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। Okay, because wavelength of red color is different from the wavelength of violet light, and we know that wavelength of red color is higher than wavelength of violet light. Okay. And this also, refractive index is inversely proportional to wavelength. So higher is the wavelength, lesser will be the refractive index. So refractive index of a pair of media depends on the wavelength of incident light. So true है दोनों statement. Okay, both statements are true, and reason is explaining the assertion. Okay, it is supporting the assertion. So here option हमारा आएगा part. Yes, this is part A is the correct option. Okay. So now question number 11. A ray of light is traveling from rarer medium to denser medium, slows down. Okay, denser में जा रही तो slow down, ठीक है, and bends away from the normal. Rarer to denser slows down and bends away from the normal. It is given away from the normal. When it travels from a denser medium to rarer medium, it speeds up and bends towards the normal. तो देखिए थोड़ा सा देखिए स्टेटमेंट को दोबारा सा पढ़ना पड़ेगा, एंड समथिंग इज रॉन्ग हियर, ना। तो रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो स्पीड क्या होती है? स्लो डाउन होती है। व्हेन इट स्लोज डाउन तो इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है ना, इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, स्पीड इज डिक्रीजिंग, सो इट हैज टू कम आउट quickly from the denser medium, so it will shorten the path, it will bend towards the normal. Okay, so when it travels from denser to medium, rarer medium, it speeds up, ये correct है, लेकिन जब speeds up होगी तो it will move away from the normal, तो यहाँ it is wrong, so this is false, this is false. Okay, so reason क्या देखो, the speed of light is higher in rarer medium than a denser medium, ये true है। स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम, तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर एंड इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हियर assertion is false and reason is true. तो assertion is false and reason is true. तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका? सी, है ना, ये सी। अब देखिए इसमें जरा ऑप्शंस देख लेते हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन है? assertion is false, reason is true, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, है ना। So here answer is D, not C. So this we have to see here. So D is the correct option here. Any problem? Okay. Now question number 12. Unit of power of a lens is meter. Okay, per meter. Unit of power of a lens is per meter. Power क्या होती है? Since P is equal to 1 upon F, and focal length को हम अगर मीटर में लेंगे, okay, it is in मीटर, तो देखिए 1 अपॉन मीटर है, तो इट विल बी यस, ओके, ये हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ट्रू।
power of a lens is reciprocal of its focal length. ये भी true है. This we have done earlier. Power of a lens is reciprocal of focal length. तो focal length ज्यादा होगा तो power क्या होगा? कम होगा. If focal length is less, power will be more. Okay, this is also true. So which option should be correct here? A, B, C, D. दोनों true है. A is correct and R is also correct. Both are true. Power of a lens is reciprocal of its focal length in meter. Reciprocal of in meter. तो तब क्या होता है? One diopter हो जाता है. तो A and R both are true and R is correct explanation of A. तो तभी तो देखो ये आया ना, मीटर में आया क्योंकि 1/f है. तो therefore यहाँ पर ऑप्शन हमारा आ जाएगा this is A. Okay? Any problem? Got it? So think of it now. Next question. Now the power of a 13 question. The power of a concave lens is always negative. Concave lens की बात हो रही है. Concave lens. So concave lens we know it is diverging lens है ना. ये concave lens हो गया. And देखिए इसमें rays of light ऐसे diverge होता है ना. Yes. And here it comes out to be ऐसा लग रहा है कि ये पीछे से आ रहा है. This is coming from this point. So focus is here. And this is optical center. So we are measuring distance like this. So focal length यहाँ पे क्या हो गया? It is minus. Focal length is here minus. So when focal length is minus, power is also minus because we know that power is reciprocal of focal length. Concave lens has virtual focus. So here you know rays of light appear to be coming from a point. Okay, यहाँ से आते हुए लग रही हैं. So this means ये यहाँ पर meet कर रही हैं. So it has virtual focus. Appear. Okay. So this has virtual focus. So this is also true and this is also true. So when it has virtual focus, so it is negative. So this means A and R both are true and R is correct explanation of A. So here answer is part A. Okay. Any doubt? Very simple question. So assertion, virtual images are always erect in nature. This we know. Virtual image हमेशा erect बनती है because here rays of light appear to meet and this is always above principal axis है ना, above principal axis. So therefore it is erect. So this is true. Virtual images are formed by diverging devices. ये भी true है because देखिए यहाँ पे diverging device है. ऐसे when we talk about the convex mirror, so here also it is diverging. ये भी देखिए diverging होता है ऐसे है ना, rays तो appear to be coming from a point meeting at a point behind the mirror. Okay, so this is also true, right? So इसलिए क्या होगा, ये above principal axis होगा. So A and R both are true and R is correct explanation of A. Okay, तो यहाँ भी ऑप्शन हमारा आएगा A is the correct explanation. Because image is erect above principal axis and rays of light also appear to be coming or appear to meeting at a point, it is also above principal axis. And these are, this is possible in diverging devices only. Okay. Now assertion 15 question. Red light travel faster in glass than green light. So why does it travel? ये true है statement. Yes, it is true. तो रेड लाइट अभी हम पढ़ रहे थे इससे पहले कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर एंड वी नो दैट VIBGYOR. ओके, तो ये रेड लाइट ऐसे चलता है ना, तो ग्रीन इज हियर. वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट. ओके, देखिए ये सीक्वेंस है. तो वेवलेंथ ऑफ ग्रीन कलर इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर. वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे जाते हैं तो है ना. ठीक, तो रेड लाइट फास्टर और वी नो दैट वेलोसिटी क्या होता है, ये f इंटू वेवलेंथ है. फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, ओनली वेवलेंथ इज चेंज. तो वेवलेंथ जब रेड कलर का ज्यादा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, इसका ज्यादा होगा. तो दिस इज ट्रू. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस फॉर रेड कलर एंड देन फॉर द ग्रीन कलर. अब इस स्टेटमेंट को देखें,
ये अभी हमने किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसमें रेड लाइट क्या होगा, इट विल ट्रेवल फास्टर। तो दिस मीन्स ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हियर अगेन ऑप्शन जो हमारा आ रहा है दिस इज ए। ओके, नाउ 16. If temperature of a medium increases, the refractive index decreases. तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, देन मोर स्पेस इज देयर ओके बिटवीन पार्टिकल्स एंड क्या क्या होगा फिर उसमें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीज। तो दिस इज ट्रू। ओके, रीजन व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू a medium, then refractive index of medium is known as absolute refractive index. This is also true. This is, so it is the absolute refractive index क्या है, it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium. Yes, in a medium. तो देखिए ये भी true है, this is also true. Now we have to see whether reason is the correct explanation of A or not. ओके, सो जैसे हम देखिए आते रहते हैं इधर टुवर्ड्स अर्थ आएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज हायर, इट इंक्रीजेस। तो जब टेम्परेचर में चेंज होगा, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का अलग होता है, तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इट विल ऑल्सो डिक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट डिक्रीजेस। तो उसमें क्या होगा देखिए, तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये, इज इट रीजन इज स्पॉटिंग द असर्शन और नॉट, जस्ट थिंक। तो देखिए व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स, इसको दोबारा से पढ़िए, ये ट्रू लग रहा है ना, हमने भी लिख दिया ट्रू। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये लग रहा है कि ट्रू है और हमने यहाँ पे लिखा है ट्रू है, जस्ट कि आप सोचें इसमें। ओके, तो इज इट ट्रू, व्हाट इज मिसिंग हियर, तो यहाँ पे मिस क्या है, स्पीड ऑफ लाइट मिसिंग है ना। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम, देन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर इसको ट्रू नहीं लेंगे, है ना, ये हमने जस्ट आपको सोचने के लिए कि आप सोचें कि यार ये ट्रू है या रॉन्ग है, ये लिख दिया था ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन vacuum to the speed of light in a medium. The speed word is missing. It is a ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in a medium. तो ये हमारा क्या है, false है, this is false, only A is true. तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, this is part C is the correct option. Okay, temperature of a medium increases, the refractive index decreases. तो टेम्परेचर बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है क्योंकि पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, देन द स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विल डिक्रीज। तो पार्ट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, स्पीड ऑफ लाइट इन ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो यहाँ पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5 ग्लास का, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज गिवन 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इट इज ट्रू, ठीक है, यस ठीक है, इतना ही होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अकॉर्डिंग टू ड्यूअल थ्योरी, लाइट हैज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अब ये स्टेटमेंट देखो, रीजन जो है इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो यहां पर ये क्या हो गया, ड्यूअल नेचर का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। तो यहां पे फिर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा, दिस इज पार्ट सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑल्सो, है ना। यहां से म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन glass, we can find speed of light in air or vacuum. So it is wrong.
Now question number 18. The speed of light is higher in water than in air. Confusing लग रहा है? Yes. Speed of light is higher. Water क्या है? Water is denser than air. जब water denser than air है, तो speed of light in water will yes be less. So this means this is wrong. ये हमारा हो गया false. Water is optically denser than air. ये हमारा true है. Water is optically denser. Water optically denser होता है, तो optically denser होगा तो speed of light in water is less. Okay, speed of light in water is less. Okay, तो इसमें क्या हो गया? This is true कि water is optically denser, but हमारा A assertion is false. तो इसमें ये false हो गया, reason true है, but it okay. तो here option हमारा आ जाएगा part again C. Okay. Now 19. The object distance is the distance of the object from lens. Lens means optical center of the lens. ये तो true है. Object distance is the distance of the object from the lens, and it is always minus. This we know. Object distance is measured from the optical center of the lens to the object. Yes, this is true. ये भी true है. ये इसको support कर रहा है पहले वाले को. ये true है और इसको ये support कर रहा है. It is a correct explanation. Object distance is the distance of the object from lens, and object distance is always measured from the optical center of the lens to the object. ठीक, ये इसको support कर रहे हैं. तो this means हमारा option क्या आएगा इसमें? This is part A. Both are true and R is the correct explanation of A. Now assertion देखिए, last question है. Image distance is always measured from optical center of the lens to the image. This is true. This we know. Optical center से measure करते हैं, है ना? And it can be either positive or negative. ठीक है ना? अब ये positive negative कब होता है? हाँ? Optical center lenses के केस में, virtual और real image के केस में. So reason क्या दे रखा है इन्होंने? Image distance is negative for virtual image and positive for real image. This is also true. ये भी हमारा true है ना? अगर image हमारा इधर बन रहा है, इधर है ना, rays of light ये आएंगे ऐसे, तो ये होगा positive. अगर image हमारा इधर बन रहा है तो it is V is negative. Here V is positive. So image distance is always measured from optical center of the lens to the image. Image distance is always negative for virtual image and positive image. तो ये भी हमारा true है और ये भी true है, and this is correct explanation of A. तो हमारा जो है this is part A is the correct option. So this way we have done how many? 20 questions today, and I'm sure you will be doing more practice at home and you will gain knowledge. Okay, so thank you.